We'll continue this second chapter, Laplace transform. Again, it's a lengthy unit, okay, but not that much difficult if you compare with the Fourier transform. Yes, I have started the recording also. Just tell me, is there any doubt in that last part? Okay, just tell me quickly. Any doubt? No doubt. Okay. So in last lecture, I think in first lecture we have completed this Laplace transform of standard functions. So you need to remember all these results. है ना, वन का Laplace transform क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, sin at, cos at, sin hyperbolic, cos hyperbolic, and t raised to n. These are the only standard functions. And after that, we have completed this. I think 5 examples. Okay, on the basis of the standard function. Okay. Now let us move ahead. Now in today's lecture, we will see some properties of Laplace transform. Okay, so we already completed this first property. Okay, that is the linearity property. Okay, so in today's lecture, one by one we will see some properties of Laplace transform, and also immediately we have to solve some examples on that. Okay, just 1 minute. So the first property is linearity property or linear property. It means we can take or we can separate Laplace transform with respect to addition or with respect to subtraction. Also we can take that constant outside to the Laplace transform. Okay, so this is your first property जो हमने I think first lecture में ये property हमने cover की थी. Now next property is actually the first shifting property. Okay, so what is meant by this first shifting property? I will tell you here. Okay. So the second property is the first shifting property. Okay, first property is linearity property, that is already over. Okay, next is first shifting property. Okay, what is meant by first shifting property? If we have the Laplace transform of f of t, so suppose or let the Laplace transform of f of t is equal to f of s. अगर आपके पास f of t का Laplace transform है, okay, then if we have Laplace transform of f of t, then the Laplace transform of e raised to at multiply by this f of t. Okay, एक सिंपल लॉजिक क्या है, अगर आपके पास f of t का Laplace transform है, then you can easily find a Laplace transform, okay, of this f of t multiply by exponential. फिर से आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज दैट रिजल्ट विच इज इक्वल टू जस्ट f of s माइनस a. ठीक है, मैं प्रूफ ज़्यादा कुछ नहीं लेने वाला हूँ, ये सारे प्रूफ ट्रिवियल है. ओके, बट ऑलरेडी हमारा सिलेबस ज़्यादा पीछे आ रहा है. ओके, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू प्रूफ ऑफ एनी वन प्रॉपर्टी, बट अगेन ये इसमें से कोई भी प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आने वाला. ठीक है, तो इट्स बेटर टू फोकस मोर ऑन द एग्जाम्पल्स, ओके, देन दिस प्रूफ. ओके, और प्रूफ ट्रिवियल है, आप बस इसका Laplace ट्रांसफॉर्म p raised to at f of t की डेफिनेशन यूज करो, है ना. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म? क्या है डेफिनेशन? Can anyone tell me what is the definition of Laplace transform? Actual definition in terms of integration. Okay, which is 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. Okay, this is the actual definition of Laplace transform, and after that we have calculated the Laplace transform of standard function. Okay, now in today's lecture we have to focus on the properties of Laplace transform. Okay, again these are again some tools by which you can easily find the Laplace transform of given function. जैसे आपने डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइन किया था, जैसे आपने डेरिवेटिव में मतलब चेन रूल डिफाइन किया था, है ना. सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो. सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स, ओके, बाय विच आल्सो यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इन अ सिमिलर वे. नाउ दीज आर आवर टूल्स, है ना. Like say first is the first shifting property. Okay, using this also you can find the Laplace transform of given function. Okay, so I hope this property is clear to everyone. Property simple है, अगर आपके पास f of t का Laplace transform है, okay, if we have the Laplace transform of f of t, then the Laplace transform of this function multiply by exponential. Okay, or if you multiply any given function by the exponential, it is actually
इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए. ओके, हाउ यू कैलकुलेट एफ ऑफ एस माइनस ए? आप बस क्या करो, एफ ऑफ टी का मतलब ये सॉल्व कैसे करना है, हाउ यू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू एटी इंटू एफ ऑफ टी. आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको बस यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कैलकुलेट करना है ना. जस्ट फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ओके, जस्ट कैलकुलेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू सम एफ ऑफ एस. ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे s को रिप्लेस करो, जस्ट रिप्लेस s बाय s माइनस ए. ठीक है, दिस आर द सिंपल रिजल्ट्स. ओके, मैं यहाँ पे इन डिटेल में आपको लिख के देता हूँ कि हाउ टू यूज दिस रिजल्ट. ओके, सो नाउ टू फाइंड Laplace transform of e raised to at f of t. करेक्ट, टू फाइंड द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at into f of t. आपको पहले क्या करना है, स्टेप 1 में Sir, you are not audible. am I audible or not? Am I audible? Other please confirm again whether my voice is clear to everyone or not. क्लियर आहे सर. Okay. मध्ये थोडं बंद पडलं, आता परत आलं व्यवस्थित. Okay. I think there is a network issue. मैंने ये साइड से नेटवर्क स्टार्ट किया है. ओके, बट फिर भी अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे बोलो, इमीडिएटली बोलो. ओके, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ये समझ में आते तो ही फिर आपको, क्योंकि बिकॉज देर आर 6 to 7 प्रॉपर्टीज आर देयर, 1 by 1 हमें एक एक प्रॉपर्टी लर्न करनी है, तो अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, अगर आपके पास एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो आप ई रेस टू एटी इंटू एफ ऑफ टी का भी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो. करना क्या है, एफ ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ओके, उसमें एस को रिप्लेस करो बाय एस माइनस ए. ओके, सो जस्ट रिप्लेस एस बाय एस माइनस ए इन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जस्ट रिप्लेस s by s minus a. a क्या है, बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ t इन द एक्सपोनेंशियल. सो जस्ट रिप्लेस s by s minus a इन Laplace transform of f of t. ठीक है, that gives you the Laplace transform of e raised to at into f of t. Okay, so we'll take one examples directly. So first question is this, find the Laplace transform of So first example is this, find the Laplace transform of e raised to t, okay, into f of t. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल है. आपको पहले ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कैसे करनी है, तो यहाँ पे भी आप देखो मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल है ना. मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल मींस दिस इज द एग्जांपल ऑन दिस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ओके, तो इसमें आपको करना क्या है, आप बस क्या करो, जिस भी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन में अगर एक्सपोनेंशियल आता है, आपको बस करना क्या है, जो आपका ऑर्डर फंक्शन है उसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. सो हियर जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 raised to t. Okay, now can anyone tell me how I calculate the Laplace transform of 4 raised to t? Yes, how you find the Laplace transform of 4 raised to t? Yes, ये हुआ था लास्ट लेक्चर में. Anyone? Just tell me idea. I don't want the exact answer. Log. क्या करना? How you write this 4 raised to t? आप इसको कैसे लिखते हो? e to the power t log 4. Very good. Just write this as e to the power t log 4. एंड आपके पास एक रिजल्ट था, जो भी अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने वो टेबल में दिए थे ना, वो आपको याद ही रखने, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर होगी. ओके, एंड व्हाट वी हैव द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू at इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a. ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है. सो जस्ट यूज दिस रिजल्ट. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, इस केस में a की वैल्यू क्या है, log 4. सो 1 अपॉन s माइनस log 4. Okay, so this is the Laplace transform of
4 raised to t. Okay, now so what is our result, or what is our formula? If the Laplace transform f of t is f of s, then the Laplace transform of this same function multiplied by e raised to at is what? F of s minus a. Means what? Just replace s by s minus a. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? If I consider this Laplace transform of e raised to t into 4 raised to t, ठीक है, तो जब आप एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? f of s माइनस a. बट व्हाट इज a हियर? अगर आप कंपेयर करते हो एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? t का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, और ये जो आपने कैलकुलेट किया था ये f of t का f of s था. तो सिंपली आपको करना क्या है? जो आपका ऑर्डर फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, और उसमें आपको करना क्या है? s को रिप्लेस करो बाय s माइनस a, वेयर a इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ this coefficient of t in the exponential, which is 1. Okay, now just replace s by s minus 1, that will be the final answer. So which is equal to 1 upon, just replace s by s minus 1 minus log 4. This is the final answer of Laplace transform of e raised to t into 4t. ठीक है, is this clear? Is this clear or not? Okay. Yes, sir. हाँ, we'll take one more example. Yes, sir. Laplace transform of cos hyperbolic and sin at. Question number 2. Find the Laplace transform of cos hyperbolic at and sin at. Cos hyperbolic at and sin at. Okay. हाँ, बट आप इनिशियली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो डायरेक्टली यू कैन नॉट अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो कैसे भी करके आपको पहले यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म जनरेट करना है. उसके लिए आपके पास एक रिजल्ट है, दैट रिजल्ट इज कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए टी इज इक्वल टू ई रेज टू ए टी प्लस ई रेज टू माइनस ए टी बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन. सो इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर, यू विल गेट Laplace transform of cos hyperbolic at into sin of at equal to the Laplace transform of the cos hyperbolic at is e raised to at plus e raised to minus at upon 2, correct, into sin at. ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? आपको ऑलरेडी पता है कि 1/2 ये कांस्टेंट है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यू कैन टेक दैट कांस्टेंट आउटसाइड टू दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म. आल्सो यू कैन सेपरेट दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लस साइन. ठीक है, तो ये अभी एक ब्रैकेट में डालता हूं, तो समझ में आपको आ जाएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ cos hyperbolic at multiplied by this sin at, and which is equal to, as this 1/2 is constant, then you can take this outside, and in bracket you will get the Laplace transform of e raised to at multiplied by sin of at plus Laplace transform of e raised to minus at sin of at. ठीक है, and that bracket complete. ठीक है, इसके आगे क्या करना है? जैसे ही फंक्शन को एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होता है, आपको बस करना क्या है? जो आपका ऑर्डर फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. ओके, तो यहाँ पे दोनों केस में आपका ऑर्डर फंक्शन क्या है? साइन एटी. सो जस्ट फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर फंक्शन एंड रिप्लेस s बाय s माइनस a. दिस इज द प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज योर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ओके, एंड सो हियर what is Laplace transform of sin at? ऑर्डर फंक्शन sin at है, and sin at का Laplace transform क्या है? Anyone? What is Laplace transform of sin at? sin में क्या ऊपर आता है? a ऊपर आता है. हाँ, आई थिंक a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ठीक है, हाँ, तो आपने ऑर्डर फंक्शन का Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया. प्रॉपर्टी आपकी क्या है? जब आप एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हो, ओके, जब आप एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हो, आपको करना क्या है? जो ऑर्डर फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ओके, इन दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म जस्ट रिप्लेस s बाय s माइनस a, है ना. तो इस फर्स्ट केस में a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू a ही है. ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ t इज a, सो a इटसेल्फ a इन दैट फर्स्ट केस. और सेकंड केस में a की वैल्यू क्या लेनी है आपको? माइनस a. इतना ही चेंज है. ठीक है, सो इक्वल टू, so 1/2
ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है। एक्चुअली आंसर में कुछ नहीं आने वाला, अब डायरेक्टली आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। सो 1/2 करना क्या आपको, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, आपको साइन एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है विच इज दिस, और उसमें s को रिप्लेस करना है s माइनस a, बट a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a itself is a, so write down that Laplace transform just by replacing s by s minus a. This is the value of first Laplace transform. प्लस सेकंड में भी वही करना है, साइन एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता ही है विच इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो दैट जस्ट रिप्लेस s बाय s माइनस a, बट यहाँ पे a की वैल्यू माइनस a, सो इट बिकम प्लस, सो जस्ट रिप्लेस s बाय s माइनस ऑफ माइनस a, दैट बिकम प्लस, सो s प्लस a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस, कुछ ज़्यादा आगे सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर। सो दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनटू साइन एटी। ठीक है, विल टेक वन मोर एग्जांपल आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस एटी टी रेज टू n। ठीक है, अभी ये ट्रिवियल है। क्वेश्चन नंबर 3, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू एटी टी रेज टू n। ठीक है, so here also you can see this exponential function is there in the multiplication, है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तब आपको करना क्या है, जो आपका ऑर्डर फंक्शन है उसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। सो इन सॉल्यूशन जस्ट कैलकुलेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर फंक्शन विच इज टी रेज टू n, एंड आई थिंक इसका फॉर्मूला आप चेक करो विच इज गैम ऑफ n+1 अपॉन s रेज टू n+1। फिर आपको करना क्या है, what is your next step, just replace, in this case just replace s by s minus a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, that itself is a, so just replace s by s minus a, that will be the final answer. So therefore the Laplace transform of e raised to at into t raised to n is equal to gamma of n+1 upon, replace करो s को s minus a से into n+1। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है ये। विल टेक दैट लास्ट एग्जांपल विच इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t cos t cos ऑफ 2t। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t cos t इंटू cos 2t। अगेन हियर यू कैन सी दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज देयर इन द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होगा, जो आपका ऑर्डर फंक्शन है उसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। सो आवर एम इज व्हाट, आवर फर्स्ट एम इज टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर फंक्शन, मींस व्हाट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t इंटू cos 2t, ये पहले आपको कैलकुलेट करना है, एंड देन विल जस्ट रिप्लेस s by s minus 2 because a is 2 here. Okay, so can anyone tell me how you find Laplace transform of this cos t into cos 2t? कैसे कैलकुलेट करोगे आप cos t मल्टीप्लाई बाय cos 2t का Laplace transform? Just give me hint. I don't want the answer. Yes, anyone? How you find the Laplace transform of cos t into cos of 2t? Yes? I just want the hint. बोलो जल्दी, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। स्टैंडर्ड फंक्शन में आपके पास क्या है, 1 e रेज टू at t रेज टू n sin cos sin hyperbolic cos hyperbolic, these are the only standard functions. So now this is not your standard function, it means what, you have to convert this into or in terms of standard function, आपको इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना है। यस, बोलो कैसे, फॉर्मूला से सर, फॉर्मूला यूज करके। हाँ, सो जस्ट अप्लाई फर्स्ट cos a इंटू cos b। तो वो जो प्रिलिमरीज में जो मैंने रिजल्ट्स दिए थे, हर एक रिजल्ट का आपको यूज करना है, तब जाके ये फॉर्मूला, इसलिए आपको मैंने पहले बोला था कि ये सारे हर एक रिजल्ट का आपको आगे जाके यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर cos a इंटू cos b। ओके, क्या है वो फॉर्मूला, कैन एनीवन टेल मी? cos ऑफ a प्लस b, बोलो, प्लस या माइनस साइन, प्लस cos of a minus b. Okay, so just use this result. So the Laplace, so it is equal to, डायरेक्टली लिख लेता हूँ अभी, चलो जाने दो। So equal to Laplace transform of, now this can be written as 1/2 in bracket
कॉस ऑफ ए प्लस बी, मतलब टी प्लस 2t इज 3t प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, टी माइनस 2t इज माइनस टी। ठीक है, अगेन दिस 1/2 इज कॉन्स्टेंट है ना, 1/2 आपका कॉन्स्टेंट, यू कैन टेक आउटसाइड, सो 1/2 इन ब्रैकेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t, एंड आपको पता ही है लैप्लास cos of minus t is cos t because it is an even function, and you can separate Laplace transform with this plus sign also, so it become Laplace transform of cos t only because cos of minus t is cos t again. And now we know the formula for Laplace transform of cos of at. Cos of at का आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है, okay, so the Laplace transform of cos of at is I think s upon s square plus s square. So if you use this result, our final answer is 1/2 in bracket s upon s square प्लस a की वैल्यू 3 है तो 9 a स्क्वायर चाहिए, प्लस यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, सो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बट दिस इज जस्ट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन, अदर फंक्शन है ना, मल्टीप्लिकेशन में जो था उसका आपने लैप्लास कैलकुलेट किया, मतलब cos t इंटू cos 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म था, सो दिस इज जस्ट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t इंटू cos ऑफ 2t। ओके, आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, हियर वी वांट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू, मल्टीप्लाई में क्या है, e रेज टू 2t मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन cos t इंटू cos 2t। तो आपको क्या करना होगा, ओके, व्हाट इज दैट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ यू मल्टीप्लाई दिस फंक्शन बाय e रेज टू at, ओके, देन जस्ट रिप्लेस s by s माइनस a, बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो जस्ट रिप्लेस s by s माइनस 2 इन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अदर फंक्शन। ठीक है, इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बस आपको करना क्या है, s को रिप्लेस करना है s माइनस 2 से, दैट विल बी द फाइनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन, सो इक्वल टू, बस रिप्लेस करके लिखना है, कुछ ज्यादा आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, s की जगह पे s माइनस 2 स्क्वायर 9, s की जगह पे s माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, so using properties now you can find the Laplace transform of a function which is multiplied by exponential. Okay. Okay, so I think this is clear to everyone. So this is your first property, correct? तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट दिया डायरेक्टली, उसके नीचे एग्जाम्पल दिए जस्ट फॉर यूर प्रैक्टिस, आप ये सॉल्व करो। ओके, मैं इमीडिएटली ये सोल्यूशन शीट प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, वाई, बिकॉज आप ये एग्जाम्पल अपने लैंग्वेज में लिखो नोटबुक में। ओके, आप नोटबुक मेंटेन करो, उसमें ये एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करो, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है, आपको फिर रिपीट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। एंड अगेन देयर आर सम एग्जाम्पल्स, ओके, एज अ होमवर्क, सो ट्राई दिस एग्जाम्पल। अगर आपको देखना है तो आप ये वीडियो देख के भी एग्जाम्पल फिर से चेक कर सकते हो। एट द एंड आई विल गिव यू दिस होल पीडीएफ। ओके, ये एटलीस्ट ये प्रॉपर्टीज होने के बाद में विद सॉल्यूशन ये सारी चीजें आपसे शेयर करता हूँ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो आवर सेकंड पार्ट इज व्हाट, our third property is second shifting property. Okay, exponential से जब आप multiply करते हो, that is called as first shifting property. Okay, now we have to learn the third property which is called as second shifting property. Okay, so let me explain this first. So third property, yes, 1 minute. So third property is second shifting प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, एक फंक्शन आपको गिवन होगा लाइक से जी ऑफ टी, ठीक है, विच इज डिफाइंड लाइक दिस, ये इसी फॉर्म में डिफाइन होगा। ठीक है, इट टेक्स वैल्यू 0 when your t is less than a, okay, and it takes value f of t minus a when t is greater equal a। इस फॉर्म में आपको डिफाइन, इस फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, और आपको करना क्या है, आवर एम इज टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस जी ऑफ टी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस जी ऑफ टी जस्ट, ओके, इट इज जस्ट इक्वल टू e रेज टू माइनस as f of s।
ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला। इफ g of t is defined like this, मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। if g of t is defined like this, then the Laplace transform of this g of t is e raised to minus s multiplied by f of s. Okay, now what is f of s? Just 1 minute. What is f of s? f of s is actually the Laplace transform of f of t. हमेशा याद रखो f of s क्या है? कैपिटल f is the Laplace transform corresponding to small f. ठीक है, सो दिस यू कैन राइट इट एज, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, e रेज टू एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। ठीक है, तो आपको ये जो g ऑफ t है ना, ओके, आपके पास f ऑफ t माइनस ए की वैल्यू है, आप वहां से f ऑफ t की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो। मतलब यहां से बस आपको एक फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, ओके, यहां से वो आपको f ऑफ आपका f फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो एंड देन मल्टीप्लाई दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय e रेज़ टू माइनस s, दैट विल बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस g ऑफ t। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, शिफ्टिंग कैसे, मैं आपको बस क्विकली एक्सप्लेन करता हूं। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? ओके, इट इज देयर इन दिस स्लाइड आल्सो। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, मतलब ये बेसिकली है क्या, व्हाट इज दिस g ऑफ t, व्हाट इज दिस f ऑफ t, है ना। तो ये आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। f ऑफ t आपका ये सपोज गिवन फंक्शन है, ओके, which is like this। मैंने यहाँ पे क्या किया है, f of t minus a कंसिडर करता हूँ, मीन्स व्हाट, आई जस्ट शिफ्ट दिस f of t टुवर्ड्स अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू a। ओके, ये आप देखो, ये बस मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, ओके, देन इट बिकम अ g of t। ये आपका ओरिजिनल f of t था, इसको मैंने a डिस्टेंस से शिफ्ट किया, इसलिए यहाँ पे लेस देन a पे 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू a पे दैट फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, सो जस्ट शिफ्ट दिस फंक्शन टू डिस्टेंस x इज इक्वल टू a, ओके, एंड आपको ये यहाँ पे g ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। एंड हाउ यू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिस g ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करोगे, यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। और इन दोनों में क्या रिजल्ट है, g ऑफ t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू e रेज टू माइनस as इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। ये एक्चुअली फॉर्मूला है। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो इफ यू शिफ्ट योर गिवन फंक्शन to a distance x is equal to a, then what is the relation between their Laplace transform? Then their Laplace transform is related with this equation, that is the Laplace transform of g of t is equal to e raised to minus as into Laplace transform of f of t. So they are almost equal with respect to this e raised to minus as, है ना? Okay, again I will skip the proof of this next property, ठीक है, now we'll take one example। ठीक है, तो रिजल्ट आप याद रखो, आपको यहां से आपके पास f ऑफ t माइनस ए गिवन होगा। ओके, मैं आपको स्टेप देता हूं। ओके, फ्रॉम g ऑफ t आपको क्या फाइंड करना है, पहले फाइंड योर f ऑफ t। ओके, सॉरी, या आप चाहो तो फाइंड योर f ऑफ t माइनस ए, उसको आप f ऑफ t में लिखो, करेक्ट, फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो। इज इजी टू रिमेंबर, g ऑफ t में से f ऑफ t माइनस से कैलकुलेट करो, उसके बाद एक्चुअल f ऑफ t कैलकुलेट करो। ये कैसे करना है, f ऑफ t माइनस ए में t माइनस ए की जगह पे t रख दो, दैट विल बी योर f ऑफ t। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, दैट इज नथिंग बट f ऑफ s। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर क्या है, देन जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय e रेज़ टू माइनस as। ठीक है, दिस आर योर स्टेप्स। ओके, सो विल टेक वन एग्जांपल डायरेक्टली, तभी आपको यह समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t वेयर योर g ऑफ t इज इक्वल टू, इट टेक्स वैल्यू 0 when t is less than 2 pi by 3 and it take value cos of t minus 2 pi by 3 when your t is greater equal 2 pi by 3। ओके, तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये g ऑफ t आपका उसी फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। कैसे डिफाइन चाहिए, लेस देन a आपका स्टैंडर्ड g ऑफ t क्या है। ओके, फॉर्मूले में आपका स्टैंडर्ड g ऑफ t क्या है, इस फॉर्म में डिफाइन चाहिए, 0 when it is less than a और it takes value some f of t minus a
व्हेन टी इज ग्रेटर इक्वल ए। तो आप देखिए प्रॉपर इस फॉर्म में डिफाइन हो रहा है, जब आपका टी लेस देन ए आता है तब वैल्यू 0 आती है, और जब आपका टी ग्रेटर इक्वल ए आता है तब आपका आंसर टी माइनस ए में आता है। तो यहाँ पे ए क्या है, हियर इन दिस केस योर ए इज 2π/3। ओके, तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर है। ठीक है, जब आपको प्रॉपर्टी समझ में आएगी तो ही आप उसका यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो दिस गिवन फंक्शन इज सिमिलर टू योर गिवन जी ऑफ टी। ये आपका फॉर्मूले का जी ऑफ टी है ना, जी ऑफ टी मैंने यही दिया था ना, 0 व्हेन टी इज लेस देन ए, इट टेक वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर इक्वल ए। ठीक है, ये याद रखो, टी माइनस ए और ग्रेटर इक्वल ए, ये जो ए आ रहा है वही ए आपको यहाँ पे चाहिए, है ना। इन दैट केस योर Laplace transform is just find the Laplace transform f of t and multiply it by e raised to minus as. Okay, so here if you compare, so in solution, so solution, let us start this solution. So if you compare this g of t with our formula or with our standard g of t, okay, यहाँ पे जो g of t था इसको अगर आप आपके standard g of t से compare करते हो, what will you get? So here we have what is value of f of t minus a? f of t minus a की वैल्यू क्या है? सॉरी, पहले मुझे a बोलो क्या है। हाँ, सो इफ यू कंपेयर दिस जी ऑफ टी विद दिस, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो ना तब आपको a की वैल्यू क्या समझ में आती है? योर a इज इक्वल टू 2π/3, करेक्ट। एंड व्हाट इज f ऑफ t माइनस a? दैट इज t माइनस 2π/3। f ऑफ t माइनस 2π/3 इज आपका फंक्शन क्या है? cos ऑफ t माइनस 2π/3। ये मैंने कंपेयर करके रखा है, कंपेयर करके लिखा है। a की वैल्यू क्या है? 2π/3, तो f ऑफ t माइनस 2π/3 क्या बन जाएगा? cos ऑफ t माइनस 2π/3। ओके, बट आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? वी डोंट वांट f ऑफ t माइनस 2π/3, आपको चाहिए f ऑफ t। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज f ऑफ t फ्रॉम दिस? अगर f ऑफ t माइनस 2π/3 cos ऑफ t माइनस 2π/3 आ रहा है तो f ऑफ t क्या होगा? यस, ये तो समझ में आ रहा है कैसे लिखा है ना। ये जी ऑफ टी जो स्टैंडर्ड था वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ओके, आप अगर कंपेयर करते तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ जाता है कि ये दोनों जी ऑफ टी ऑलमोस्ट इक्वल है। आपको बस करना है क्या? a इक्वल टू 2π/3 लेना है एंड योर f फंक्शन इज कॉस फंक्शन, है ना। देखिए आप दोनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑन दिस second shifting property, and in this case how you find the Laplace transform of g of t? Just find the Laplace transform of f of t multiply by e raised to minus as। तो आपको उसके लिए चाहिए f of t का Laplace transform, बट f of t का Laplace transform कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको चाहिए f of t। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? इफ आई कंपेयर दिस, ओके, आई विल गेट a इक्वल टू 2π/3, f of t माइनस, मतलब ये वैल्यू f of t माइनस 2π/3 इज cos of t माइनस 2π/3। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज f of t फ्रॉम दिस? वेरी गुड, cos t। इसमें कोई लॉजिक यूज नहीं करना है। f ऑफ t माइनस 2π/3 अगर cos t माइनस 2π/3 आ रहा है, f ऑफ t क्या होगा? इस टोटल वैल्यू को रिप्लेस करो t से, तो यहाँ पे भी इस टोटल वैल्यू रिप्लेस होगी t से, दैट इज cos t ओनली। तो यहाँ पे आपका f ऑफ t क्या है? cos t। नाउ कैलकुलेट इट्स Laplace ट्रांसफॉर्म। सो द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू, ओके, cos t का Laplace ट्रांसफॉर्म आपको पहले ही पता है। जस्ट कंपेयर विद दी, वी हैव दैट स्टैंडर्ड रिजल्ट, the Laplace transform of cos of at is equal to s upon s square plus a square. Use this standard result. So it is equal to cos t का Laplace transform आपका आ जाएगा s upon s square plus 1 square, that is 1। ठीक है, and generally we call it as f of s। आप एक तो याद रखो कि आपको अगर f of s का नोटेशन यूज करना, आप f of s का नोटेशन यूज करो, या अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप L of f of t लिखो हमेशा। दोनों सेम है, f of s लिखो या L f of t लिखो, बोथ आर सेम। चलो, सो अपने f of t का Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया। नाउ व्हाट इज अवर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? सो बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी the Laplace transform of g of t is equal to e raised to minus as Laplace transform of f of t। यहाँ पे f of s लिखा है, बट मैंने आपको बोला दोनों का मीनिंग सेम है। मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। सो विच इज इक्वल टू e raised to minus s, तो वैसे ही आने वाला, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा,
मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस केस में बस आपको ये एफ ऑफ टी माइनस ए आइडेंटिफाई करना है, वहां से एफ ऑफ टी आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, देन जस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए रेज़ टू माइनस एस। इतना ट्रिवियल है। ठीक है, विल टेक वन मोर एग्जांपल। अगर ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो विल टेक वन मोर एग्जांपल। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी वेयर सर एक की जगह पे 2π/3। हाँ करेक्ट वी नो द वैल्यू ऑफ ए ना, सो करेक्ट, वेरी गुड। तो एक को तो रिप्लेस करना ही होगा, सो 2π/3 इंटू एस। ठीक है, करेक्ट, वो आपको रिप्लेस करना है। एंड नाउ नेक्स्ट इज जी ऑफ टी इज इक्वल टू, विल टेक वन मोर। हाँ, सो टी माइनस 1 क्यूब when t is greater than or equal to 1 and it is 0 when t is less than 1। ठीक है, सो सॉल्यूशन में तो पहले आपको ये जी ऑफ टी आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो इफ यू कंपेयर दिस जी ऑफ टी विद आवर स्टैंडर्ड जी ऑफ टी, आपका स्टैंडर्ड जी ऑफ टी क्या था, इट टेक्स वैल्यू 0 when t is less than a, it takes value f of t minus a, takes value f of t minus a when t is greater equal a, and in this case your Laplace transform of g of t is actually equal to e raised to minus as Laplace transform of f of t, करेक्ट लिखा था। ठीक है, सो here if you compare this g of t, है ना, if you compare this g of t with this स्टैंडर्ड जी ऑफ टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 1। ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए, बट ए इज 1, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी माइनस 1, फंक्शन आपके पास क्या है, टी माइनस 1 क्यूब। ठीक है, व्हाट दिस इंप्लाइज एफ ऑफ टी इक्वल टू, अगर टी माइनस 1 क्यूब है तो एफ ऑफ टी क्या आएगा, टी क्यूब। टी माइनस 1 की जगह पे टी रख दो, सो एफ ऑफ टी इज टी क्यूब। अभी आपको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, सो जस्ट फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ओके, विच इज इक्वल टू, दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब। हाँ, क्या आता है टी क्यूब का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एनीवन, व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब? सर gamma of 4 upon s power of 2। वेरी गुड, gamma of 4, that is gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1। okay, but gamma of 4 क्या होता है, 3 factorial upon s raised to 4, that is 6 upon s raised to 4। तो ये तो हो गया आपके पास f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो therefore लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t वो क्या आएगा, इट इज जस्ट द e raised to minus as into लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t। सारे वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू आई थिंक 1 है, सो e raised to minus s मल्टीप्लाई बाय इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म विच इज 6 अपॉन s raised to 4 हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, एंड नाउ विल टेक दिस लास्ट प्रॉपर्टी एंड देन विल स्टॉप। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज मीन बाय चेंज ऑफ स्केल। So now third property is change of scale property. Okay, it means what? If we have the Laplace transform of f of t, which is say f of s, ठीक है, then the Laplace transform of f of ta, okay, मतलब t multiplied by some a, where a may be 2, a may be 3, a may be 4, like f of 4t, f of 5t, f of 6t, like this, okay, is equal to, okay, 1 by a f of s by a। ठीक है, 1 by a f of s by a, मतलब क्या करना है, f का लाप्लास, f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो और उसमें s को रिप्लेस करो s by a से। ओके, विल टेक वन एग्जांपल डायरेक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल 1,
ये लेंदी है। आपके पास ऑलरेडी एफ ऑफ टी गिवन है, लैपलास ट्रांसफॉर्म गिवन है। इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एफ ऑफ टी, वो पता नहीं आपके पास व्हाट इज दैट फंक्शन, सो इट इज ऑलरेडी गिवन, ओके, विच इज एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 अपॉन 2s प्लस 1 s माइनस 1 2s प्लस 1 s माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई e रेज टू माइनस 2s, ये आपको गिवन है, ओके। तो आपके पास एक एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म गिवन है और क्वेश्चन क्या है, यूजिंग दिस फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t, और आपको करना क्या है, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 4t, ठीक है। सो इट इज सिमिलर टू दिस। अगर t का लैपलास ट्रांसफॉर्म आपके पास है तो आप ta का कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, ये जो t का लैपलास ट्रांसफॉर्म है उसमें s को रिप्लेस करो बाय s बाय a, है ना। सो इन सॉल्यूशन जस्ट रिप्लेस s बाय a, s को रिप्लेस करो s बाय a से एंड मल्टीप्लाई, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a, ठीक है, टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। सो द फाइनल आंसर इज, सो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 4t, क्या आने वाला है आपका, a की वैल्यू क्या है, a मतलब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a, बट a इज व्हाट 4, सो 1 अपॉन 4 एफ ऑफ s बाय 4, अगर आप ये रिजल्ट यूज करते हो तो, ओके। टी ए क्या आता है 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस बाय ए, दैट इज 1 बाय 4 एफ ऑफ एस बाय 4। व्हाट इज एफ ऑफ एस, ये जो भी एफ ऑफ टी का जो भी लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, ओके, जो भी एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज योर एफ ऑफ एस, ये होता है आपका एफ ऑफ एस, बट आपको चाहिए एफ ऑफ एस बाय 4, है ना। तो आप क्या करो, इसमें एस को रिप्लेस करो एस बाय 4 से, सो विच इज इक्वल टू, जस्ट रिप्लेस एस बाय 4, so it become s by 4 square minus s by 4 plus 1 upon 2 into s by 4 plus 1 s by 4 minus 1 e raised to minus 2 s by 4। आप ये अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। सो मैं क्विकली लिख रहा हूँ, मैं भी करेक्ट होगा रहूँगा, आई डोंट नो, एस स्क्वायर माइनस ठीक है, सो एस स्क्वायर अपॉन 16, तो ये 16 ही आने वाला है, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 16, है ना, अपॉन 16 डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा s बाई 2, मतलब s प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करो आराम से, s प्लस 2 अपॉन ये आने वाला है 2, ठीक है, और ये होगा s माइनस 4 अपॉन आने वाला है 4, सो 2 इंटू 4 बिकम 8, ये आने वाला है e रेज टू माइनस s बाय 2, ओके। एंड आई थिंक ये बाहर मल्टीप्लाई में क्या था 1 बाय 4 था, 1 अपॉन ए ना, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ए, सो 1 अपॉन ए 8, दिस इज 2, और ये 2 बाय दिस बिकम 1 बाय 2 बाय 4 मीन्स 1 बाय 2, so final answer is 1 by 2 s square minus 4s plus 16 upon s plus 2 into s minus 4 into e raised to minus s by 2, ठीक है। ट्रिवियल है, बस करना क्या है, f of what is f of at 1 upon a f of s by a, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पास f of t का लैपलास ट्रांसफॉर्म वहां पे रहेगा, आपको बस उसमें से s को रिप्लेस करना है s by a से, बट यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो s को रिप्लेस करो s बाय 4 से, जस्ट डू द सिंप्लीफिकेशन, वट एवर यू विल गेट दैट विल बी द फाइनल आंसर। कुछ ज़्यादा इसमें ये भी इतना कुछ लेंदी सिंप्लीफिकेशन नहीं आने वाला, ठीक है। सो इन सेकंड क्वेश्चन आल्सो यहाँ पे भी आपके पास एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म गिवन है ना, एफ ऑफ टी का आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्म गिवन है विच इज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s, आपको एफ ऑफ ए टी का चाहिए, ठीक है। अब ये एफ ऑफ ए टी के फॉर्म में है क्या, वेदर दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, अगर यह आपका एफ ऑफ टी है तो यह आपका एफ ऑफ ए टी होगा क्या, बोलो, नो तो क्या करना होगा यहां पे, ए टी मतलब जहां पे टी था उसके जगह पे टी आना चाहिए, है ना। तो मुझे एक एडजस्टमेंट करनी होगी विच इज
ऑलरेडी यहाँ पे 80 आ रहा है, नीचे भी मुझे 80 चाहिए, तो मैं 80 एडजस्ट करता हूँ, बट ये a एडजस्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है, तब जाके मेरा f ऑफ 80 एडजस्ट होगा, है ना। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज a में बाहर लेता हूँ एज इट इज अ कांस्टेंट, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ 80, ठीक है। एंड उसका आंसर क्या है, a तो वैसा ही रहेगा, इसका आंसर क्या है 1/a, है ना, f ऑफ s बाय a, है ना। तो a कैंसिल होगा, f ऑफ s बाय मतलब f ऑफ s ये होता है, इसमें s को रिप्लेस करो s बाय a से, सो इट बिकम tan इनवर्स ऑफ 1/s, बट s को रिप्लेस करो s बाय a, इट बिकम a/s। ये सारे स्टेप्स है उसके, ठीक है। ओके, सो हियर विल स्टॉप, विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, और मैं एक बार रिवाइज भी करता हूँ कि क्या क्या आज के लेक्चर में हुआ।